near and dear ones, very good morning. Before starting this lecture, I wish all of you that you are taking precautions, you are following the instructions, and you are doing very, very well with this corona pandemic. Before starting this lecture, before starting what we are gonna learn, before starting everything, I must tell you few things as basics of this. When we are hitting to a particular language, we ought to be that person who is focusing on the relationship of that language and self. Unless and until we are decoding that relationship, in my way, we cannot be able to just decode that language and to just learn or to just dominate that language. Basically, in simple words, when I started to follow this language, when I started to learn this language, when I started to dominate this language, the very first thing that I did is I put a relationship with her. Definitely, it was not like a subjective person or personality, so we can relate with it. But very simple words I can put here, and they are कि मैंने इसको समझा अपनी चाची. And why I am saying this, I'll be telling you with proof, logical. There is difference between a चाची and a मौसी. आपको भी ये फर्क तो पता ही होगा कि चाची के साथ हमारा संबंध कैसे होते हैं और मौसी के साथ हमारे संबंध कैसे होते हैं. तो in simple words, I can say that English language is not that much सीधी like मौसी. It is like twisted. It is like you will be having the problems with the spellings. You will be having the problems with a particular genres of grammar. So it is something which is there to make you confused. And that is what I am saying, that this is chachi, not mausi. I usually tell this to students, to the people who are just aspiring English language and all. So first of all, second thing I would suggest to you is there are 3 stages to understand a subject, to understand a language, to understand any kind of scrutiny I am saying. Those 3 things are like, first one is to know that language or subject. Okay, so this is the first step. We ought to know that language or subject. Second, we have to think over it. Unless and until we are thinking about that particular subject or language, how can we got to know about it in deeper manner, I'm saying. The third one is to love it. So first one, know it. Second, think it. And third, love it. Unless and until you are loving your job, you are not going to do anything in your life. And this is not saying of mine. You must be know Apple production, the CEO, the ex-CEO of it, and the inventor of Apple, who is saying this language. Okay. So particularly this is something where you just have your chances, where just you have your opportunities. But before visiting or before hitting that language, ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत important है. इसीलिए उसको know करो, इसीलिए उसको think करो, तीसरा उसको love करो. ये 3 चीज़ करोगे तो English language या कोई भी other language या कोई भी other subject, you will be just dominating that subject. Believe me. Now, thinking about the basics or preface of studying English language in India is not that simple or not that easy. Coming to this, suddenly when I go to my friends, when I sit up with some family members, speaking English for them is world's biggest thing. In my words, I say that bigger than the figure. Come on, it is not like that. So English language is something where people just think that कि अगर किसी ने English में कुछ बोल दिया तो उससे ज़्यादा प्रमाणभूत कोई चीज़ है नहीं. That means no any other thing can be that much official as compared to this. I mean the English particular strata or something. So Indian atmosphere में अगर आपको English पढ़ना है तो you have to be so much clear about that. Very simply, अगर आपको थोड़ा सा तबला बजाना आता है तो तबला सिखाने वाला आपसे कंपैरेटिवली एक नए बंदे से जो कि इनिशियली तबला सीख रहा है उससे ज़्यादा ही पैसा लेना चाहिए, क्योंकि आपको जितना आता है वो सब सही नहीं आता.
बहुत ही गलत धारणाएं आप आपके दिमाग में, आपके हाथ में रखते हो, और उसी की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ट्यूटर, उस सिखाने वाले को आपकी जो गलत चीज़ें हैं वो निकालनी है, बाद में सही तरह से प्रोसेस्ड थिंग्स आपने उसको इनबिल्ट करनी है। तो फॉर द सेम थिंग हैपन्स एवरीवेयर। अगर मुझे कुछ साइंटिफिक चीज़ें किसी लैंग्वेज या किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है, तो आई बी जस्ट डूइंग इट लाइक, वेरी सिंपल एग्जाम्पल आई कैन गिव। जब लोग बहुत ही उत्साह में आकर ये कहने लगते हैं कि चलो अगर मुझे इंग्लिश पढ़ना है तो आई बी जॉइनिंग सम इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, आई मीन कम ऑन, यू कैन नॉट से लाइक दैट। स्पोकन क्लासेस, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आई मीन ये बड़े बड़े, एक्चुअली दिस इज अ पार्ट जहाँ पे क्रिटिसाइज करना चाहिए बहुत बड़े लोगों को, बट हमारे जैसे छोटे लोगों के दिमाग में इतनी सी चीज़ भी नहीं जाती कि हाउ कैन वी स्पीक द लैंग्वेज विच इज ऑलमोस्ट स्पोकन। आई एम नॉट टेक्निकली सेइंग दिस, आई एम सब्जेक्टिवली सेइंग दिस, लाइक कम ऑन, स्पोकन लैंग्वेज और स्पोकन इंग्लिश, हाउ कैन यू डू दैट? Leave it, that is not part of this lecture. Second, people say like my mobile is not in range. That is correct, but some people say my mobile doesn't have range. I mean, come on, you should say, or you ought to say that I don't have network. But in general language, even in Marathi, we say like आज range नहीं माझ्या फोनला. This is not the correct language. So इसीलिए considering the atmosphere, the particular Indian atmosphere I'm saying, जहाँ पे you have to speak English in a particular manner. I mean, you cannot take English fluency in your language, and if you're taking it, people will think you're out of somewhere. It is not like that. Forget about that. This is what I am trying to say to you, that the atmosphere, first of all, we have to consider. We have to erase the mistakes that continuously getting done by the million of people. Okay, so we ought not to go for that way, and that is why we are practicing here कि हमें वो गलतियाँ नहीं करनी। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने 3 चीज़ें कही, हमको उसको नो, थिंक एंड लव करना है। सेकेंड, हमको इंडियन स्टैंडर्ड और इंडियन एटमॉस्फेयर के अंदर रहकर उसकी खामियों को निकाल के प्रोसेस्ड पद्धतियों के साथ इंग्लिश को पढ़ना है। सेकेंड थिंग। थर्ड वन इज लाइक दैट, जब व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट दिस ऑल, और हमने जो ये प्रीफेस देखा, तो अब जब हम पर्टिकुलरली टेंस भाई साहब की तरफ जाएंगे, मेनी पीपल से टेंसेस, नाउ दिस इज अगेन अ चैप्टर जहाँ पे हम कितना ही डिस्प्यूट और डिस्कस कर सकते हैं, बट लेट इट बी ऑन दैट पार्ट। नाउ व्हेन वी थिंक अबाउट टेंस, स्पेशली इन इंग्लिश, इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर मैंने मराठी कहा, अगर मैंने हिंदी कहा, अगर मैंने गुजराती कहा, अगर मैंने कोई भी अदर देवनागरी लिपि की मैं लैंग्वेज की बात करूँ, तो हर जगह पे व्याकरण या ग्रामर होता ही है, बट उसके अंदर जो हर एक की धारणाएं हैं, जस्ट बिकॉज आई टोल्ड यू के इंग्लिश समहाउ और बाय अ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल रीजन वो पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेज बन चुकी है। आई हैव सम डिस्प्यूट्स विद दैट, बट लेट इट बी। पर इस लैंग्वेज को अगर उस हिसाब से डोमिनेट करना है, तो दिस इज वर्कर्स लैंग्वेज। गो विद द हिस्ट्री एंड यू विल बी फाइंडिंग माई सेंटेंस करेक्टली। ये काम करने वाले लोगों की लैंग्वेज है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट हैविंग दैट स्टांस व्हिच संस्कृत हैज, व्हिच Marathi has, which Hindi has. Almost all of the languages are having the base in Sanskrit language. So I'm telling about this. Coming to our own and pure lecture, when we think about the tense, we should not get tensed. Definitely, just because कि many a time it happens कि आपको स्कूल में, आपको कॉलेजेस के अंदर, आपको स्पोकन क्लासेस के अंदर हमेशा टेंसेस ही पढ़ाए जाएंगे। हमेशा स्टार्ट टेंसेस से होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच या टेंस, दोनों में से कुछ ना कुछ। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो रेगुलर है, बट स्टिल उनके तरफ देखने का रवैया हो या फिर पढ़ने की पद्धतियाँ हो, वहाँ पे हमारी सारी की सारी उलझनें रहती है। इसीलिए वी आर जस्ट गोना ट्राई टू मेक इट लाइक फिल्म्स। आई मस्ट से दिस एग्जाम्पल टू यू।
अगर मैंने आपको बोला कि आपको किसी मूवी को देखने जाना पड़ेगा, फिर आप जाओगे, फिर वहाँ पे आपको नोटबुक लेकर जाना है, पेन या पेंसिल लेकर जाना है, फिर आपको मुझे ये बताना है कि what type of genre in that music was, what type of directorial clicks you loved. ये सब जो चीज़ें हैं, ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं उसके, पर ये सब चीज़ें आपको अगर मैं लिखवा के लाने के लिए अगर बोलूँ, तो यू विल बी सेइंग कि अरे सर जी, हमें इस पेन और पेंसिल या पैड की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हम पूरा स्टोरी लाइन अप ऐसे बता देंगे, ऐसे यूँ. तो दिस इज जस्ट लाइक दैट. आई विश दैट के द लर्निंग प्रोसेस और द टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग बोथ, दिस शुड बी इंटरेक्टिव फर्स्ट एंड सेकेंड वेरी अम्यूजमेंट. अगर जब तक ये अम्यूज्ड नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता उसमें कुछ सीखने जैसा होगा. तो इसीलिए फॉर दिस वी आर गोना ट्राई दिस वेरी इंटरेक्टिव क्लास. सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज लाइक, जब जब हम यहाँ पे कुछ करेंगे तो यू ought to have a pen or pencil or a notebook, okay, and you will be writing into it. Very simple. इंग्लिश लैंग्वेज का जब हम टेंस पढ़ते हैं तो why it is that much dangerous, why it is that much confused, तो उसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूँ तो मैं अगर बोलूँ कि अगर मैं किसी लैंग्वेज में, खास करके हिंदी, मराठी, संस्कृत में अगर मैं कुछ लिखूँ तो ऑल ओवर इंडिया it is gonna be read like as it is. For example, if I am saying दीपक, कहीं पे भी जाओ यार, you will be finding the same wordings. कोई भी इसको दूपक, दापो, दूपके ऐसे नहीं पढ़ेगा. This is the strength of a language. On the other hand, why English is so much confused? I can give you example. First one, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखने की अगर कोशिश करूँ, वैसे तो बहुत सारे वैसे, लेकिन हम 2-3 ही देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट डीप, लेकिन डीप भी उसको आप पढ़ सकते. डीप, 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 कुछ भी. That is what I am saying कि we are gonna get confused here. So just forget about it. अगर ये उसका स्वभाव है तो हम उसको छोड़ देते हैं ना. इसीलिए what to catch and what to leave ये हमको पढ़ना पड़ेगा. टेंस की बात अगर स्पेसिफिकली करें तो हमें 4 चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से बेसिक्स उसके क्लियर करने पड़ेंगे. What I can say is preface. तो वो 4 भी चीज़ें हम तुरंत देख लेते हैं. उसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लेकर इम्पॉर्टेंट और लीस्ट इम्पॉर्टेंट इस हिसाब से डालेंगे. पर हमें ये नहीं भूलना है कि ये चारों भी चीज़ें हमें उतने ही कंसंट्रेशन के साथ ध्यान में रखनी है. बस हम उसको प्रायोरिटी देंगे, बराबर, लाइक दैट. जैसे कि द वेरी फर्स्ट वन इज, अगर हमें सही हिसाब से टेंस की ओर जाना है तो फर्स्ट वन शुड बी forms of verbs. Okay, very simple. Many a times आपने इसको पढ़ा होगा, many a times आपको बताया गया होगा किस हिसाब से क्या. Just forget about it all. हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे. कुछ चीज़ें हम पकड़ के चल रहे हैं कि हमको हो चुकी है, फिर भी we are gonna again and again see at that just to make sure कि हम कोई भी चीज़ उस प्रोसेस के दौरान ना छोड़ें. Okay, so come for this. फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अंदर हम 2 टाइप्स के अलग अलग वर्ब्स देखेंगे. 3 वर्ब्स है जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स को डिफाइन करते हैं, और वो है, फर्स्ट है टू बी, सेकंड है टू डू, और थर्ड वन है टू हैव. अब जब हम फॉर्मूलाज देखेंगे, जब हम टेंसेस को डीप में देखेंगे, तब इसके बारे में हम डीपली जान ही लेंगे. पर ओवरऑल ऊपर से अगर देखना है तो यू कैन से
और वी कैन से इज, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो एम, इज, आर, ये टू बी के स्वरूप है सब. दीज आर द फॉर्म्स ऑफ टू बी. ओके, एंड वी ऑल नो दैट कि आई के साथ एम आएगा और वो सब चैट, आई, वी, you, he, she, it, and they. So that is very basic things. So we are not gonna focus on that. अगर आपको चाहिए तो we can go with that. Amazon, अगर past tense के बारे में बात करेंगे तो was, were. ये हम अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है. वेरी सिंपल. एंड द थर्ड वन इज कि अगर हम टू बी के अंदर फ्यूचर को देखना चाहते हैं तो दिस विल बी will, not sure. Okay, now the second is to do. To focuses more on three forms. First one is do, sometimes does, how and why. We are gonna see this. And the third one, this stands for the past tense. Okay, and the last one is we have two or three. First one is have, oblique has, and in past tense it would be had. In future it will be like will have. Okay, this is it. So first of all, forms of verbs, which is the most important thing while we are learning the tenses. Second is the formulas. Definitely कितना भी इसको मना करें हम, we ought to know कि formulas के बगैर कुछ नहीं होने वाला. But formulas मुझे याद करने हैं या मुझे उसको ध्यान में रखना है, बहुत ही छोटा सा फर्क है इन दोनों में. Just because कि when we say that हमें पिट पैक करना है या मगअप करना है या फिर रिमेंबर करना है, तो वेरी सिंपली जब हमें माँ कहती है कि ग्रोसरी के दुकान में जाओ और ये 4 चीजें लेकर आओ, अगर कम होती है तो, बड़ी होगी तो ऑफ कोर्स वी विल बी टेकिंग द लिस्ट. ओके, बट अगर 4 चीजें हैं तो हम उसको मगअप नहीं करते हैं, वी जस्ट कीप इन द मेमोरी, और उसको हम कहते हैं कि हम उसको याद रखते हैं, हम उसको पिटपैट नहीं करते. तो सेम थिंग वी आर गोना डू विद दिस. व्हाट आई सजेस्ट टू यू इज कि आप इसको पिटपैट या मगअप मत करो, पर इसको सिर्फ ध्यान में रखो. इसकी वजह से जब भी आपके सामने कोई भी टेंस ट्विस्ट बन के आएगा तो यू विल बी फाइंडिंग इट वेरी सिंपल हाउ टू ट्विस्ट दोज फॉर्मूलाज इनटू दोज एग्जांपल्स, और आप कभी भी उसमें फेल नहीं होंगे. थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग, and that is subject and object. We all know about this. For example, I write one sentence here, I love India. So here I can say that this is subject and this is object. Okay, and this one is verb. So subject and object, they are very much essential to know how the tenses goes. Okay, and the fourth one, which is not that big but still we have to focus, and that is rules. Okay, so when we think about the rules, it is just like कि आपको सिर्फ फॉर्मूला डालकर कोई भी टेंस बनाना नहीं है. अगर कल को कोई उठ के मुझे ये सवाल पूछ रहा है कि अगर मेरी कोई आदत है जैसे कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ तो वो मुझे किस टेंस में लेना है, तो इसके भी अलग अलग रूल्स हैं. वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं या फिर हर टेंस के अंदर कुछ ऐसे रूल्स नहीं हैं, पर फिर भी वी हैव टू थिंक अबाउट द रूल्स.
इसीलिए अगर मुझे आदत के बारे में कहना है तो मुझे डेफिनेटली सिंपल प्रेजेंट टेंस के पास जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने 4 चीजें देखी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर मुझे टेंस की तरफ जाना है। ये 4 चीजें कर लो आप, टेंस आपके मुट्ठी में। फर्स्ट वन, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, उसमें हमने देखा टू बी, टू डू और टू हैव। जो अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं अभी। सेकेंड हमने देखा फॉर्मूलाज। थर्ड वन हमने देखा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, उसको अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहना है तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर यहाँ से आगे वाला भाग होता है जहाँ से आप वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और आगे ऑब्जेक्ट को वो कवर करता है। बट लेट इट बी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस दिखे तो आपको ये इजीली पता चलना चाहिए कि दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड द लास्ट वन दैट इज रूल्स। जैसे कि मैंने कहा कुछ सिचुएशन आती है, जैसे कि मुझे फ्यूचर प्लान बताने हैं कि अरे मैं मुंबई जाने वाला हूँ, तो उसके लिए सिर्फ फ्यूचर टेंस के बारे में हमको पढ़ के नहीं जमेगा। कौन सा टेंस यूज करना चाहिए, तो आई एम गोइंग मुंबई नेक्स्ट वीक, तो ये डिसीजन मेकिंग जो है तो ये स्पेशली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट टेंस में आनी चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो फॉर दिस वी आर स्टडिंग अबाउट रूल्स। तो जब हम उसके अंदर डिटेल में चले जाएंगे तो वी विल बी फोकसिंग ऑन दैट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज, जो आपको पता ही है लेकिन फिर भी वी आर गोना सी दिस, द फॉर्म्स ऑफ वर्ब का अलग एक सेक्टर है और वो ये है जो हम हमेशा पढ़ते हैं, V1, V2, V3 और V4। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कोई वर्ब लें जैसे कि eat, ate, eaten, and eating, जितने भी वर्ब्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उतने सबके इतने 4 फॉर्म्स तो होंगे ही। 5वें फॉर्म्स भी होते हैं जो यहाँ पे आएंगे। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। कुछ बेसिक्स हमने देखे, इसके पहले भी कुछ बेसिक्स हमने देखे, वो आपको ध्यान में रखने हैं। आपको ये 4 चीजें बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट टेंसेस। इसीलिए इस पार्ट के अंदर we'll be seeing only this. We'll be meeting soon in next part. Thank you.